Hello everyone and welcome to Maths Express. This is our part 2 on chapter percentage. हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था how to convert a fraction, a decimal or a ratio into percentage and also how to convert percentage into fraction, decimal and ratio. और आज हम सीखेंगे how to express one quantity as a percentage of another quantity. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है that percentage is equal to one quantity upon other quantity into 100. Now इस फॉर्मूला को हम एक एग्जांपल से समझेंगे. Suppose Priya got 4 marks out of 10 in her unit test and we have to find her percentage marks. Now Priya has got 4 marks out of 10. That means प्रिया को 4 मार्क्स मिले हैं 10 में से. Now if you want to express it at percentage, तो सबसे पहले हम इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. Now since Priya has got 4 marks out of 10, तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी 4 है, सेकंड क्वांटिटी हमारी 10 है. तो जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 आउट ऑफ 10 को हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 10. Now this is in fraction form. और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए we multiply by 100. So हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. Here we can cancel and 4 into 10 is equal to 40%. So since Priya has got 4 marks out of 10, तो जब हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे, so we can say Priya got 40% in her unit test. So now we have converted these marks into percentage. तो जब भी हमने एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के उसमें एक्सप्रेस करना होता है, then we write one quantity upon other quantity into 100%. Now let us see some examples here. Now we have to find what percentage is 30 of 60. हमें find करना है 30 as a percentage of 60. Now again according to formula, first quantity upon second quantity into 100. So यहाँ पर हमारी first quantity है 30 upon second quantity which is 60. Now we have expressed it as fraction. अब हमने इसको fraction के फॉर्म में कर लिया है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए we multiply by 100. यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं 3 to the 6 and 250 that is 100. So we get 50%. So 30 as a percentage of 60, so that answer would be 50%. Next is we have to find 16 hours of 2 days. Now in this case अगर आप देखेंगे दोनों में यूनिट्स डिफरेंट है. यहाँ पर हमारे पास आवर्स है और यहाँ पर हमारे पास डेज है. ऐसे क्वेश्चंस में always try to convert bigger unit to smaller unit. हम बड़ी वाली यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. Now इसमें days is bigger unit, तो हम days को hours में कन्वर्ट करेंगे. We know one day is equal to 24 hours. So 2 days will be equal to 24 into 2, that is 48 hours. So now 2 days is equal to 48 hours. अब हमने 16 hours as a percentage of 48 hours निकालना है. तो हमारे यहाँ पर first quantity is 16. So हम इसको लिखेंगे 16 upon, now instead of 2 days अब हम लिखेंगे 48 hours. So upon 48 into 100. Now we can cancel here 16 3 the 48. But 100 और 3 कैंसिल नहीं हो सकते हैं. So we write it as 100 upon 3%. और इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, so we can write it as 33 1 upon 3%. So in such cases just remember जहाँ पर भी यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होगा हम यूनिट्स को सेम करेंगे. Now let us see our next example. यहाँ पर हमारे पास है 90 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 4.5 मीटर्स. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक यूनिट सेंटीमीटर
और दूसरी यूनिट मीटर्स में है। दैट मीन्स हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 4.5 meters will be equal to 4.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे and that is equal to 450 सेंटीमीटर। That means now हमने 4.5 meters को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। Now we need to find it as a percentage. So 90 centimeter as a percentage of 450 centimeter. So first quantity यहाँ पर हमारी 90 centimeter है upon second quantity which is 450 multiplied by 100. Just remember हमारे पास ये फ्रैक्शन आएगा और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। Here you cancel 9 5 the 45 and 5 20 the is 100. So we get 20%. So 90 centimeter as a percentage of 4.5 meter, that is equal to 20%. Now let us see one more example. Now 250 grams as a percentage of 5 kg. Now again यहाँ पर भी यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम kg is a bigger unit, तो हम kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। We know 1 kg is equal to 1000 grams. So 5 kg will be equal to 5000 grams और अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। So first quantity यहाँ पर हमारी 250 grams है, so 250 upon second quantity, so 5 kg की जगह अब हम 5000 grams लिखेंगे, so upon 5000, अब ये फ्रैक्शन आ गया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए we multiply by 100. So here we can cancel these two zeros, also cancel here with 100 and 5 5 the 25. So that is equal to 5%. Now let us see our next question. The question says find the value of 25% of rupees 1000. Now मैंने आपको पहले भी बताया था that percentage means a fraction with denominator 100. तो परसेंटेज का मतलब ये है ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहता है। सो दैट मीन्स 25% का मतलब होता है 25 अपॉन 100। सो 25% है, अगर हमारे पास 25 अपॉन 100 है, अगर डिनोमिनेटर 100 है, दैट मीन्स इसको हम परसेंटेज फॉर्म में 25% लिख सकते हैं। सिमिलरली 25% को हम लिखेंगे, जब फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 25 अपॉन 100। नाउ ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे एंड ऑफ रुपीज 1000, सो हमें 25% ऑफ रुपीज 1000 निकालना है। हियर वी कैन कैंसिल एंड 25 into 10 इज इक्वल टू 250। बट अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे 25% ऑफ रुपीज 1000, हमारे यहाँ यूनिट है रुपीज, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। यूनिट मेंशन करना कंपलसरी होता है। सो 25% ऑफ रुपीज 1000 इज इक्वल टू रुपीज 250। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हमें फाइंड करना है 12.5% ऑफ 80 kg। अगर आप यहाँ देखेंगे तो परसेंटेज हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको सबसे पहले now we convert it into improper fraction. 2 into 12 is 24 plus 1, 25 upon 2% of 80 kg. now यहाँ पर ये परसेंटेज है और परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे अपॉन 100. so we write it as 25 upon 2 divided by 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे इनटू 80. ना यहाँ पर 25 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 100 है, और जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो वी राइट इट एज 25 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 100, राइट।
और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 80 से। ना जब यहाँ पर डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, सो वी राइट 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाय 80। तो इस ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है तो अपॉन 100 जब हम करेंगे तो इंस्टेड ऑफ अपॉन 100 यू राइट इट एज मल्टीप्लाइड बाय 1/100। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 80 वी कैन कैंसिल हियर 25 1 the 25 4 the is 100 and 420 the is 80 and here we cancel 210 the 20. So we write it as 10%. Now let us do one more question of the same sort. यहाँ पर हमारे पास है 33 1/3% of 27 meters. Now दोबारा अगर आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 33 into 3 99 plus 1 100/3% of 27 meters। और मैंने आपसे कहा था परसेंटेज का मतलब होता है फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। अब परसेंट है तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अपॉन 100 लिखेंगे। और मैंने आपसे अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि जब भी हमारे पास परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम उसको अपॉन 100 की बजाय आप लिखेंगे इनटू 1/100। Now we have off sign. Off means multiply into 27. Here we can cancel 100 and 100 and 3 9 is 27. So that is equal to 9 meters. Now let us see our next example. Now here we have to find 2% of 2 hours and 30 minutes. Now सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है 2 hours and 30 minutes. Hours and minutes. तो सबसे पहले हम आवर्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो वी नो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। दैट मीन्स 2 hours will be equal to 120 minutes। दैट इज 60 into 2। हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 120 minutes। अब हमारे पास है 2 hours 30 minutes। हमने आवर्स को मिनट्स में चेंज कर दिया है। 2 hours इज इक्वल टू 120 minutes प्लस हियर 30 minutes विच इज इक्वल टू 150 minutes। सो हमने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है एंड नाउ वी नीड टू फाइंड 2% ऑफ 150 minutes। सो 2% ऑफ 150 minutes, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो 2% मीन्स 2/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो इनटू 150। हम यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर देंगे। 2 5 the 10 and 5 3 the is 15। सो वी गेट हियर 3। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट हमारे पास मिनट्स थी, सो आंसर विल बी इक्वल टू 3 minutes। This brings us to the end of this video। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो do not forget to press the like button and also subscribe to our channel to get notified about the latest videos।